बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। روي الفاطمة الطاهرة سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة من الذنوب فقلت له ذكر الله يا أبت من الذنوب فقال يا فاطمة بالقصال ما يؤدين بي قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالقصال وغطيت به وصرت انظر إليه وجدت ذلك كأنه البر في الليلة والتماله والكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا فاطمة إذا بلد الحسن قد دخل وقال السلام عليك يا الله فقط عليك السلام يا قرة عين ثمرة فؤادي فقال لي يا الله إني عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا من جدك نعم ذات القصاء فأبو الحسن رهب القصاء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا رسول الله تعالى ما كنت هذا القصاء فقال له من قد أظن لك الرسول عليه السلام ذات القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام عليها فما كانت إلا فاطمة إذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقط عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا الله إني عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا من جدك وقعنا من تحت هذا القصاء فقال الحسين عليه السلام له القصاء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا مختار الله تعالى نقول ما تحت هذا القصاء فقال له قد أذنت لك يا حسين فتقرب من الحسين تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا فاطمة إذا بالحسن عليه السلام قد قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني عندك راية طيبة كأن راية أم رسول الله فقلت اللهم ولديك نحن تحت هذا القصاء فقال عليه السلام له القصاء وقال السلام عليك يا من قال الله أترك لما كنت تحت هذا القصاء قال نعم قد أذنت لك فتقدم عليهم تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام عليها ثم أقبلنا القصاء وقلت السلام عليك يا رب السلام عليك يا رسول الله يا ترك لما كنت تحت هذا القصاء قال نعم قد أذنت لك فتقدم تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما كمل جميل تحت القصاء قال الله يعلم يا ملائكة سكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مطبية ولا أرض مطبية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلقية ولا بحرية ولا فلقية إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت القصاء قال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعاد رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا رب أتنا بك إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى من قد أذنت لك فأبدل مني جبريل وأقبلنا والقصاء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله وإن الله تجلى الكلام ويبلغ بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مطبية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلقية ولا بحرية ولا فلقية إلا لأجل محبة عظيمة لكم تحت
وفي جميع من شيعتنا ومن إلا ونزلت عليهم الرحمة وأخبرت بالملائكة واستغفرت الله أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال عليه السلام ثم والله فرضنا وطيبنا كذلك شركنا فاضوا في ظلم الكعبة. فقال رسول الله والذي بعث بالحق نبي واصطفاني برسالة النجيم ما ذكر قبل هذا من معامل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا وفي محكم الله وفرج الله عنه ولا مأمون الله وكشف الله ضره ولا طالب حاجة الله قضى الله حاجته. وقال عليه ثم الله فرضنا وطيبنا وكذلك شركنا فاضوا وطيب في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبالحق حسن وأنت المحصي. الله آمين. حسين وأنت قديم الإحسان. الله آمين. وبحق الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. तुमसे ज़हरा यार शब में मेरी मैयत उठाना यारी आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़हरा यालिया तोड़ी गई कैसे बतलाऊंगी मैं हंसलिया तोड़ी गई कैसे बतलाऊंगी मैं हश्र के मैदान में बीस हाल में आऊंगी मैं हाथ पहलू से ना तुम मेरे हटाना यारी आज रुख़सत हो रही है तुम अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन अम्मा जब तक न बुलाएगी न आएगा हुसैन अम्मा जब तक न बुलाएगी न आएगा हुसैन सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन अम्मा जब तक न बुलाएगी न आएगा हुसैन अम्मा जब तक न बुलाएगी न आएगा अश्क-ए-आलूद फ़िज़ा गम की घटा छाई है हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है कहाँ जाए आखिर बयान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा कहाँ जाए
खबर ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे खबर ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे खबर ज़हरा अली रो रहे। तुम्हारी मुसीबत भुलाऊंगा कैसे, मैं बच्चों से आंसू छुपाऊंगा कैसे। तुम्हें याद करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने मनाऊंगा कैसे। तसव्वुर में ज़हरा से करके ये बातें झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे खबर ज़हरा अली रो रहे। وقولهم الحق ثم الحق
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान ईमान, बुजुर्गान मिल्लत, मुसलसल ये मेरी दूसरी मजलिस है आपकी समातों के हवाले, और खुदा आपको भी सलामत रखे कि आप जो है जनाब सजदा की इस मजलिस में मुसलसल आ रहे हैं। खुदा की समातों को बुलंद रखे। देखें कि वाकईन ये हमारे लिए बहुत ही शरफ का मकाम है कि खुदा बंदे आदम ने हमें जन्नत नुमा माहौल में बैठने का मौका इनायत फरमाया। बेशक बेशक। और ये भी एक मेरे लिए निहायत ही शरफ का मकाम है कि सुबह क़यामत से कायनात में सुबह क़यामत तक, अज़ल से लेकर अबद तक और अबद से लेकर अबद तक जिस बीवी को उम्मो अबीहा का लक़ब मिला, उसकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिला। वरना हम जैसे खाबी और खातून की क्या बसात, हम जैसे कतरे बेसात की क्या औकात के बहरे बेकरां का जिक्र करें, फज़ाइल बयान करें। मगर ये खुदा ने हमें शरफ इनायत फरमाया है कि बीवी की शान में चंद टूटे फूटे अल्फाज आपकी समातों तक पहुँचाने हैं। देखें, ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये सूरह साफ़ात की 165वीं आयत है, 165। इसमें इस आयत में खुदावंद आदम बता रहा है, क़ारी कुरान की बंद आंखों को खोलना चाह रहा है कि तुम तलाश करो उन हस्तियों को कि जिनके ज़बाने मुतहर से, ज़बाने अक़दस से निकले हुए हर फिक्रे को, हर जुमले को मैं कुरान की आयत बना रहा हूँ। तुम तलाश करो उन हस्तियों को। देखें कितनी बेहतरीन आयत है। इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। तर्जुमा सुन लें कि हम ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले खुदा की बारगाह में सफ़े बनाई। बेशक बेशक। हम ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले खुदा की बारगाह में सफ़े बनाई, और हम ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले बारगाह इला में तस्बीह का नजराना पेश किया। कौन है यह हस्ती? जाहिर सी बात है कि भाई कुरान मजीद की तिलावत है, कुरान मजीद की आयत है। अब जो कारियान कुरान है उन पर ये लाजिम है कि जब कुरान की तिलावत करें तो वो उन हस्तियों को तलाश करें, उन कैरेक्टर को तलाश करें, उन शख्सियतों को तलाश करें कि वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सी हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सब बनाया, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह का नजराना पेश किया। और ये भी याद रखें कि जब भी आप नमाज की सफ़ों में खड़े हो
एक मिसाल दे दूं, जैसे आप मजलिस में आए, आपको जहां जगह मिल गई आप वहां बैठ गए, आप अपनी जगह बैठकर मजलिस को समाप्त फरमा रहे हैं। आपने सफ जमात हो तो उसके लिए सफ जरूरी है, तो आप जब भी सब में खड़े हो और सब बनाने वाले का ख्याल आए तो उनकी अजमतों को सलाम कीजिएगा कि उन्होंने आपको बारगाह खुदा में खड़े होने का सलीका सिखा दिया। उन्होंने आपको बारगाह खुदाबंद आलम में खड़े रहने का, खड़े होने का सलीका सिखा दिया। अब देखें आयत का तर्जुमा क्या। आयत क्या कह रही है कि हम ही हैं वो लोग जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सफ बनाई, और हम ही हैं वो लोग जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तस्बीह का नजराना पेश किया। अब जब मैंने इस आयत को पढ़ा, तफसीर का मुतालिया किया, अहादीस को पढ़ा, उनका मुतालिया किया, तो मुझे पता चला कि ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब कायनात खल्क नहीं हुई थी, जब ज़मीन और आसमान का वजूद नहीं था, जब मशरिक़ व मगरिब का वजूद नहीं था, जब अर्ज़ व समा खल्क नहीं हुए थे, जब जुनूब व शिमाल जो है पैदा नहीं हुए थे, इनकी खिलकत नहीं हुई थी, सितारे नहीं थे, अशजार नहीं थे, ये कायनात नहीं थी, न अब्दाल था, न कुतुब था, न दस्तो जबल थे, न ये कायनात थी। सिर्फ दो ही चीजें थी, या तो यज़दान था या ज़हरा का खानदान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो ही चीजें थी, या तो यज़दान था या ज़हरा का खानदान था। अब ये नूर जो थे, पंजतन का नूर, अर्श पर जिन्होंने ये कहा कि हमने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सब बनाई, और हम ही ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तस्बीह का नजराना पेश किया। अब देखें कि खुदाबंद आलम ने आगे का जुमला क्या रखा। खुदाबंद आलम ने क्या कहा, कुंतु कंज़न मख्फिया, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, कुंतु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने वजूद को इरादा किया, मैंने अपने इरादे को वजूद अता किया, मैंने अपने इरादे को वजूद अता किया और नूर के कुछ हिस्से बनाए, नूर के कुछ हिस्से बनाए। अब वो जो नूर आसमान में था, जो सबसे पहले, सब में सबसे पहले और आगे खड़ा था, उसे अर्श पर अहमद मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं, और जो इन नूरानी शख्सियतों में सबसे आगे था, अर्श वाले उसे अहमद मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं, और जमीन वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं। अब इस नूर के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे बिला फज़्ल जो नूर था, उसे विलायत ममलिकत शहंशाह का वली कहते हैं, अली कहते हैं। अब अली की दाहिनी जानिब हसन, बाही जानिब हुसैन। कौन हुसैन? कि जिसकी हे में इस्लाम किया हुस्न है, जिसकी हे में इस्लाम का हुस्न है, वो हुसैन कि जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती है, वो हुसैन कि जिसके ईए में इस्लाम की जारी है, वो हुसैन के जिसके नून में निज़ाम मुस्तफ़ा का जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन सारे मासूमों के पीछे एक नूर अपनी रिदाए इस्मत का साया किए हुए खड़ी थी। एक नूर था जिसने रिदाए इस्मत का साया करके इनकी पुष्ट पनाही की थी, जिसे जमीन पर सैयदा के नाम से जाना जाता है। जिसे जमीन पर सैयदा के नाम से जाना जाता है, अकीदत के
ज़बान में उसे ज़हरा कहा जाता है, अकीदत के लिबास में उसे सैयदा कहा जाता है, उसे उम्मु अबीहा, उम्मुल हसन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल अइम्मा और उम्मु अबीहा कहा जाता है। अब देखें, अब जब मैंने कहा तो मैं लफ्ज़ की लोगी माने आपको बता दूं कि के माने क्या होते हैं। के माने होते हैं माँ के, वही जो हमारी और आपकी माँ है। के माने माँ। अब इस्तिलाही माने क्या है? इस्तिलाही माने जू समझ लीजिए, जैसे उम्मुल कुरा, उम्मुल किताब, उम्मुल शज्र। ये उम्मुल कुरा क्या है, उम्मुल किताब क्या है, उम्मुल शज्र क्या है? उम्मुल किताब जिसे कहते हैं कुरान मजीद को, और सूरह हमद को भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि सूरह हमद कुरान के सारे पारों का आगाज जो है कहां से होता है? सूरह हमद से होता है। इसलिए इसको उम्मुल किताब कहा जाता है। उम्मुल कुरा खाने काबा को कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि सारी जमीनों का आगाज कहां से हुआ? खाने काबा की जमीन से हुआ। उम्मुल शज्र गुठली को कहा जाता है, बीज को, जिससे दरख्त निकलता है, जिससे दरख्त निकलता है उसे उम्मुल शज्र कहते हैं। अब देखें कि रसूल खुदा के घर में और बहुत सारी मोहतरम माएँ थी, और बहुत सारी मोहतरम माएँ थी, और जब भी गुजरती थी एक दूसरे को देखकर कहती थी कि ये उम्मुल मोमिनीन है, ये उम्मुल मोमिनीन है। जब रसूल ने ये मरहला देखा तो रसूल सैयदा के करीब गए, और जाने के बाद एक जुमला कहा, बेटी तू टेंशन ना ले मेरी बेटी, ऐ मेरी लत्ते जिगर तू परेशान ना हो। अगर ये उम्मुल मोमिनीन है तो तू उम्मे अबीहा है। अगर ये उम्मुल मोमिनीन है तो ये तू उम्मे अबीहा है। अगर ये उम्मुल मोमिनीन है तो उम्मु अबीहा है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन होना और बात है, अपने बाप की बेटी होने के बावजूद भी बाप की माँ होना और बात है। एक सलवात पढ़ के मोहम्मद उम्मुल मोमिनीन होना और बात है, बेटी होने के बावजूद अपनी बाप की माँ होना और बात। तो के माने क्या हुआ? मैंने इतना सारा बता दिया। उम्मुल अइम्मा, उम्मु अबीहा, उम्मुल शज्र, उम्मुल कुरा, उम्मुल किताब, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। तो के माने क्या हुआ? पहचान के, आगाज के, वजूद के। के माने खुदा क्या कह रहा है? उन तो कंजन मख्फिया के मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को खल्क किया। अब जुमले पर तवज्जो कीजिएगा कि वो खुदा जो लायक-ए-लायज़ाद है, जो सारी कायनात को खल्क करने वाला है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसने अपनी पहचान के लिए मोहम्मद को खल्क किया। अपनी पहचान का नाम उसने मोहम्मद रखा, और मोहम्मद ने अपनी पहचान का नाम फातिमा रखा। एक सलवात पढ़ के मोहम्मद वो खुदा जो कायनात को खल्क करने वाला है, उसने अपनी पहचान का नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद ने अपनी पहचान का नाम फातिमा रखा। ये नूर जब आसमान में थे तो जो सबसे पहले नूर था, जो सबसे आगे मोहम्मद मुस्तफा का नूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली इसने खुदा की बारगाह में तस्बीह का सबसे पहला लफ्ज़ लिखा, सबसे पहला जुमला। वो जुमला क्या है? सुबहान अल्लाह। अभी मोहम्मद की ज़बान से सुबहान अल्लाह निकला था कि अली की ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी हसन अली की ज़बान से निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह कि हुसैन की ज़बान से निकला। अल्लाह अकबर। हसन की ज़बान से निकला अल्लाह अकबर, हुसैन की ज़बान से निकला वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। इन नूरानी शख्सियत की ज़बान से निकला पहला जुमला। रसूल की ज़बान से क्या निकला? सुभान अल्लाह। अली की ज़बान से क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन की ज़बान से क्या निकला? वला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन की ज़बान से क्या निकला? अल्लाहु अकबर। अब मैं सब सारे जुमलों को समेट, जब मैंने इनका मजमूआ किया तो क्या बना? तस्बीहात अरबा। तस्बीहात अरबा मौलाना यहाँ तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछें कि आपको अगर मगरिब की, इशा की, ज़ुहरैन की नमाज पढ़नी हो तो आप तीसरी और चौथी रकात में क्या पढ़ेंगे? मौलाना कहेंगे कि भाई आप तस्बीहात अरबा पढ़ें। आप तस्बीहात अरबा पढ़ें या सूरह हम्द पढ़ें, लेकिन बेहतर यह है कि तस्बीहात अरबा पढ़ें। अब आपने मुझे मिंबर पर बैठा दिया कि पंचतन के फज़ाइल बयान कीजिए, मैं पंचतन के फज़ाइल कैसे बयान करूं? अमा जिन पंचतन की ज़बान से निकले हुए 5 फिक्रे सूरह हम्द के बराबर हो, जिन पंचतन के ज़बान से निकले हुए 5 फिक्रे सूरह हम्द के बराबर हैं, उनकी फज़ाइल मुझ जैसे नाचीज से कैसे बयान करें? ये मेरे लिए वाकई बड़ा दुश्वार और मुश्किल मरहला है। अब जो सबसे पीछे नूर था जनाब सैयदा, जनाब सैयदा की ज़बान से निकला सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वल रूह। सुबूहुन तो तस्बीह के लायक है, कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वल रूह, तू हमारा रब है, मलाइका का रब है। अब देखें ज़माने का ये मिजाज बन गया है, वो हम पर अक्सर जो है ताने करते हैं, अक्सर ताने लगाते हैं, अक्सर जो है हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम इनकी मजलिसों में इसलिए नहीं जाते कि इनका अकीदा ये है कि ये कहते हैं कि पंचतन मलाइका और फरिश्तों से पहले अफसल पैदा हुए। इनका ये अकीदा है कि ये अपनी मजलिसों में बयान करते हैं कि मलाइका और फरिश्ते पंचतन के नूर के बाद, पंचतन की खिलकत के बाद ये पैदा हुए। तो खुदा की कसम जनाब सैयदा ने इस तस्बीह में फैसला कर दिया कि पहले हम पैदा हुए, मलाइका बाद में पैदा हुए। क्या कहा? रब्बुना व रब्बुल मलाइकति, कहा कि तू रब पहले हमारा है, मलाइका का बाद में है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद अब देखें ये मिजाज, ये कैफियत, मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ, मेरा मौजू क्या है? ये मिजाज, ये कैफियत मोहम्मद मुस्तफ़ा अनवार मुजस्सम, ये कैफियत है। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि कुरान से पहले खुदावंद आलम ने 3 और किताबें नाज़िल की, तौरेत, ज़बूर, इंजील। ये 3 किताबें 3 नबियों को अता की, मगर मिजाज कैसा है खुदा का? जनाब मूसा से पूछा किताब चाहिए, कहाँ परवरदिगार किताब चाहिए? कहा भेजूंगा नहीं आसमान पर, कहा भेजूंगा नहीं, किताब लेने आ जाओ। जनाब ईसा से पूछा किताब चाहिए, कहाँ परवरदिगार किताब चाहिए? कहा कि भेजूंगा नहीं, आ जाओ। जनाब दाऊद से पूछा कि किताब चाहिए, कहाँ परवरदिगार किताब चाहिए? कहा भेजूंगा नहीं, आना पड़ेगा। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये निज़ाम है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आई, खुदावंद आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा, ए मोहम्मद किताब चाहिए? कहा हाँ मेरे परवरदिगार किताब
लगा, कहा मोहम्मद आने की जहमत न करना, मैं किताब भेज रहा हूँ। अब जरा सा तवज्जो कीजिएगा, सारे नबियों को किताब के लिए बुलाया मगर मोहम्मद को किताब के लिए नहीं बुलाया। वजह क्या है? बताना चाहता था खुदावंद आलम कि ये किताब है, मैंने अपने हबीब को दिया है, मगर ये फातिमा का नूर है। अगर इसे लेना है तो मोहम्मद तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। खुदावंद आलम बताना चाहता है कि कुरान और है, फातिमा और है। कहा कि ये कुरान है, कुरान के लिए मोहम्मद आप सहमत गवारा ना करें, मैं कुरान भेज दूंगा मगर फातिमा को लेने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। अब आप जानिए कितनी मुकद्दस हस्ती है जनाब फातिमा ज़हरा कि अगर रसूल उसे लेने चला जाए तो हकीकत में उसे मिराज कहते हैं। अब आइए, आप और तमाम हजरात का खूबी वाकिफ है कि 20 जमाती सानी को ये नूर इस कायनात में आया। इस जमाती सानी को ये नूर इस कायनात में आया। 3 जमाती सानी को ये नूर इस दुनिया से चला गया। जब ये कायनात में आया मुजस्सम की शक्ल में आया, जिस्म के साथ इस कायनात में आया। अब जब ये कायनात में आया तो रवायत बताती है कि जनाब फातिमा ज़हरा की परवरिश के लिए रसूल खुदा ने उम्मे सलमा को भेजा था। कहा उम्मे सलमा इनको आदाब सिखाओ, इनको आदाब सिखाओ। उम्मे सलमा ने क्या कहा? या रसूल खुदा, मैं उसको आदाब सिखाऊं जो बचपने से ही मुअद्दब हो, मैं तो खुद ही इनसे सीख रही हूँ। काम मैं इनसे खुद ही सीख रही हूँ। अब ये नूर जैसे जैसे बड़ा होता गया जिस्म की शक्ल में, अब नबी के घर में जो है, नबी के घर में रिश्तों के अंबार, लोग आते रहे कि या नबी अल्लाह सैयदा की शादी हमारे साथ। लेकिन नबी अल्लाह ने, रसूल खुदा ने कहा कि चूंकि फातिमा अल्लाह के वहाँ से आई है, लिहाजा फातिमा का कुफो और हम सब जो है कहाँ से आएगा? अल्लाह के वहाँ से आएगा। जब अली इस कायनात में आए और जनाब फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली के साथ हुई, अब यहाँ से हमें दर्श मिलता है। क्या दर्श मिलता है? फातिमा ज़हरा की जिंदगी का दर्श। मौला अली के साथ जब जनाब फातिमा ज़हरा की शादी हुई, जनाब फातिमा ज़हरा मौला अली के घर में, जनाब फातिमा ज़हरा मौला अली के घर में आ गई। अब जब यहाँ आगे रहने लगे जनाब फातिमा ज़हरा, तो रवायत बताती है कि एक दिन, रावी खुद मौला अली है, रवायत बताते हैं मौला अली कहते हैं एक दिन जनाब सैयदा जो है शदीद बीमार हो गई, शदीद बीमार हो गई। अब रात पूरी जो है बेचैनी से कटी, पूरी रात बेचैनी से जनाब सैयदा की कटी, और मैं भी जो है पूरी रात यूं ही जगा। जब सुबह की अज़ान हुई, मैंने देखा कि जनाब सैयदा उठी और उठने के बाद वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद इबादत के लिए मेहराबे इबादत में चली गई। अली कहते हैं कि मैं भी गया मस्जिद में नमाज पढ़ के जब वापस आया तो मैंने क्या देखा कि सज्जदा, खुदा सज्जदा, मैंने देखा कि सज्जदा चक्की चला रही है। अब सज्जदा चक्की चला रही है। मैं करीब गया और जाने के बाद मैंने देखा कि शदीद बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से जनाब सज्जदा का चेहरा जो है तमतमा रहा है।
कैफियत बदली हुई थी जनाब फातिमा ज़हरा की। मैं करीब गया और जाने के बाद बड़ी नरमी से मैंने कहा कि या सैयदा, आप पूरी रात यूं जगी और सुबह के वक्त आपने वजू किया, वजू करने के बाद मेराबे इबादत में चली गई और अब आप जो है चक्की चला रही है। क्या इन सब कामों से आपकी तबीयत में इजाफा नहीं होगा? आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने कुछ लिखा था। जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या कहा? या अली, मैं इबादत करने गई खुदा की, वज़ू किया, इबादत के लिए जो है खुदा की मेराबे इबादत में चली गई। ये खुदा की इबादत थी, ये खुदा की इताअत थी, और ये जो मैं चक्की चला रही हूँ ये आपकी इताअत है, ये आपकी इताअत है कि मैं आपके लिए चक्की चला रही हूँ। और इन दोनों कामों के बीच अगर मुझे मौत आ जाए तो ये मेरे लिए खुशी का मकाम है, ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि मैं इबादत परवरदिगार में या आपकी इताअत में जो है इस दुनिया से चली जाऊं, तो ये मेरे लिए शरफ का मकाम है, निहायत ही खुशी का मकाम है। अब देखें हमें यहाँ से दर्ज क्या मिलता है। जनाब फातिमा ज़हरा की जिंदगी के पहलू, चाहे बेटी के उन्वान से देखिए, माँ के उन्वान से देखिए या सौजा के उन्वान से देखिए, सारे पहलू आपको बेमिसाल मिलेंगे। आज हमारे वहाँ देखिए कैसा मिजाज है, कैसे जो है लोगों ने अपने सिस्टम को कैसे बना के रखा है, अपना सिस्टम और मिजाज कैसा बना के रखा है। हमारे वहाँ मिजाज ये है कि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब हमारी बेटी शादी के लायक हो जाती है, तो हम तलाश करते हैं कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि जिससे हमारी बेटी की अगर शादी हो तो हमारी बेटी पूरी जिंदगी आराम से बैठ कर खाए। और जब ये अपने घर जाए, ससुराल में जाए, तो वहां इसको काम ना करना पड़े, आराम से बैठ कर खाए। और जनाब सैयदा का मिजाज क्या है कि रसूल खुदा ने खुद जनाब सैयदा को ये वसीयत करके भेजा था कि तुम अली के घर जा रही हो, सारे उमूर तुम अंजाम देना। और आप जानते हैं कि सैयदा के घर में कनीज़ें थी, मलाइका भी थे, मगर सारे काम जनाब फातिमा ज़हरा खुद किया करते थे। जनाब फिज़ा को रसूल खुदा ने जनाब फातिमा को दिया कनीज़ी में, और वसीयत की, यह फातिमा मैं इस फिज़ा को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मगर ये याद रखना कि मुसलसल फिज़ा से काम ना लेना, एक दिन खुद काम करना और एक दिन फिज़ा से काम लेना। ये हमारी सैयदा का मिजाज है। हमारा मिजाज क्या है कि भाई हमारी बेटी ऐसे घर में जाए जहां जाने के बाद जिंदगी भर आराम से बैठकर खाए। हमारा मिजाज ये नहीं है कि हम अपनी बेटी को सैयदा की सीरत बताएं, हमारा मिजाज ये नहीं है कि हम अपनी बेटी को सैयदा का मकाम बताएं, हमारी हैसियत ये नहीं है कि हम अपनी बेटी को सैयदा का मकाम और सैयदा का मर्तबा बताएं। हम तो बस यही सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी भी घर पे जाए, आराम से बैठकर खाए, आराम से रहे, वहां उसको कोई तकलीफ ना हो। यह हमारा मिजाज है और हमने ही ऐसा मिजाज बनाया खुदा के साथ। देखिए बचपने से जनाब सैयदा का ये मिजाज था। जनाब सैयदा का बचपने से ये मिजाज था कि कभी भी जनाब सैयदा को कभी किसी ने भी जनाब सैयदा का चेहरा नहीं देखा। अब आप सोचें कि आप कह रहे हैं कि भाई हम जो है जनाब सैयदा के खादिम हैं, जनाब सैयदा के चाहने वाले हैं, जनाब सैयदा के अज़ादार हैं। क्या आपने अपने घरों में अपने घर वालियों को, अपनी बेटियों को ये पैगाम दिया कि जनाब सैयदा की सीरत क्या है, जनाब सैयदा ने हमें बताया क्या है?
नहीं, आज भी बाजार में जाए, आज भी बाजार में जाए, जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है सैयदा के गुलाम हैं, हमारी बीबियां जो है सैयदा की कनीज है, आप बाजार में जाके देखें उनका चेहरा खुला हुआ है। हालांकि खुद फातिमा ज़हरा ने ये कहा था कि बेहतरीन औरतों का सीरत क्या है, उसकी हया। मगर इस मॉडर्न जमाने में आप देखें जाके बाजारों में, सर के बाल जो है पीछे से दुपट्टे से निकला हुआ है, दिख रहा है, चेहरा पूरा जो है खुला हुआ है, ऐसे बाजार में जो है हजूम बना हुआ है, लोग दिख रहे हैं ऐसे बाजार में। अब आप ये बताएं कि जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत क्या इसके लिए जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा था कि हया औरतों का ज़ेवर है? आप देखें कि किस तरीके से सैयदा ने उम्र खाना, किस तरीके से बच्चों की परवरिश, अतात शौहर किस तरीके से अंजाम दिया है। जनाब फातिमा ज़हरा की जिंदगी का है, आप अगर देखें इतना बेहतरीन नमूने अमल है जनाब फातिमा ज़हरा का पहलू। जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत पर अगर आप नजर करें तो आपको समझ में आए कि जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत क्या है। आज हमारे घरों में देखें एक छोटा शैतान है जिसको टीवी के नाम से जाना जाता है, जिसको टीवी के नाम से जाना जाता है। ये कभी आप मत सोचिएगा कि मौलाना जो है टीवी के खिलाफ है, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं। इसलिए कि घर में टीवी रखना हराम नहीं है, उसका यूज करना हराम नहीं है, अन यूज करना उसका जो है गलत है। क्या आप किसी मदरसे, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का वक्त है, आप उस वक्त जो है क्या कर रहे हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं। आप उस वक्त बैठ के क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुक्म लगता है, जिस वक्त पढ़ने का वक्त, जो पढ़ने का वक्त है, अगर उस वक्त में आप टीवी देख रहे हैं तो ये क्या है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। हमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की कि छोटा बच्चा है, टीवी का रिमोट जो है हाथ में मैंने दे दिया, जाओ बेटा टीवी देखो, बेटा जो है टीवी चालू करके कार्टून देख रहा है। अब आप बताइए, आप 24 घंटे में 12 घंटा ऑफिस में रहते हैं, 12 घंटा घर में रहते हैं, 6 घंटा आराम से सोते हैं और 6 घंटे में से कुछ घंटे जो है घर के काम करते हैं। बेटे का सारा जहन किसकी तरफ है, टीवी की तरफ। आपके बेटे का नाम अहमद है, आप चिल्लाइए अहमद, अहमद। देखिए वो आपको आवाज दे रहा है, क्या वो आपकी आवाज नहीं सुन रहा है? वो आपकी आवाज सुन रहा है, मगर बात ये है कि वो आपकी आवाज से बहुत कम मायूस है, वो ज्यादा जो है कार्टून की आवाज से मायूस है। लिहाजा कार्टून की आवाज के आगे आपकी आवाज जो है क्या है, सुनाई नहीं देती। अब देखिए यही मरहला में यहाँ पे जो है एक छोटी सी गुफ्तगू और एक छोटा सा मसला जो है यहाँ पर बयान करता चलूं। जो जिसकी आवाज से जितना मायूस होगा उसकी तरफ उतना मुतवज्जा होता। अब देख ले जंगे उहद में, जंगे उहद में क्या था, शैतान चिल्ला रहा था कि मोहम्मद मारे गए और मोहम्मद कह रहे थे कि मैं जिंदा हूं, मगर लोग मोहम्मद की बात नहीं सुन रहे थे, शैतान की बात सुन रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो शैतान की आवाज से मायूस थे। तो जो जिसकी आवाज से जितना मायूस होता है
उसकी तरफ उसकी तवज्जो ज्यादा होती है। अब आप किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, किस तरीके से अपने घर की औरतों को बताएंगे कि फातिमा ज़हरा की सीरत क्या है, फातिमा ज़हरा का इखलाक क्या है। हम बताएंगे भी कैसे, जब तक बच्चा छोटा है, रात का वक्त होता है, खुदा हाफिज कहता है, बाप जो है खुदा हाफिज कह के सो जाता है। मगर यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है और अपने वालिदैन से रात में गुड नाइट करके सोता है, तो बाप बड़ा खुश होता है कि बेटे ने आज जो है इंग्लिश बोल दी, बेटा आज हमारा इंग्लिश बोल रहा है। जब तक खुदा हाफिज कह रहा था तब तक कोई खुशी नहीं थी। जब तक इस्लाम के दायरे में था तब तक लबों पे जो है मुस्कुराहट नहीं थी। जैसे ही बच्चा इस्लाम के दायरे से निकला, आपको खुशी होगी कि बेटा आज जो है इंग्लिश बोल रहा है। ये है सलीका। जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत। आप खुद अपने घरों में तब्दील करें, जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत आप खुद बताएं कि किस तरीके से जनाब ज़हरा ने अपनी जिंदगी गुजारी, किस तरीके से हिजाब का दर्स दिया, किस तरीके से औलाद की परवरिश का दर्स दिया, किस तरीके से शौहर की इताअत का दर्स दिया। ये सारी चीजें आप अपने घरों में तब्दील करें और आप खुद ध्यान रखें कि आपके घर से जब कोई औरत निकले, चाहे आपकी बेटी हो चाहे बीवी हो, जब निकले तो आप उसको इतना जरूर बोले कि तुम जब माशरे में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, तो जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत के साथ जाओ। अपने बालों को और अपने चेहरे को अच्छी तरीके से छिपा कर जाओ। अब मसला आप लोग भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे मसला, बिना महरम को देखना क्या है, ना महरम को देखना शरीयत में हराम है, चाहे औरत देखे चाहे मर्द देखे। मगर आप देखें कि जो औरतें घर से बेपर्दा निकलती हैं, क्या उन पर नजर नहीं पड़ती? तो नजर पड़ती है। आप इतना तसव्वुर रखें, आप सिर्फ इतना सोचें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सैयदा के गुलाम हैं, हमारी बीबियां सैयदा की कनीज हैं, तो आप इतना तसव्वुर करें कि कनीजी में अगर फातिमा ज़हरा के मकाम तक नहीं पहुंच सकती, तो कम से कम कनीजी में इतनी तो बन जाए कि हम मुहर्रमात से बच सके। ताकि जमाना जब तुम्हें देखे, तुम्हारी औरतों को देखे, तो बताए कि ये जो है ज़हरा की चाहने वाली है। वो ऐसा बनाए ताकि आप इस कायनात में नमूने अमल बने और लोग आपको पहचाने कि आप सैयदा की चाहने वाली हैं, कि ये फातिमा है, मेरी लफ्ते जिगर है, मेरी नज़र की ठंडक है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इन्हें पहचानो, ये फातिमा है। बाद वफात रसूल फातिमा पर मुसीबत के पहाड़ गिरा। जिस फातिमा के लिए जनाब खदीजा ने कहा था कि अपनी उम्मत से कह दे कि हमारे बाद फातिमा से कोई बुलंद आवाज में, ऊंची आवाज में बात ना करे, उसी फातिमा के घर पर आग और लकड़ियां लेकर बाद वफात रसूल। मसाइब के सिर्फ दो जुमले शुरू होते हैं। सैयदा की जिंदगी का सबसे मसाइब वाला दिन कि जब जनाब सैयदा ने मसाइब पढ़ा, सुबह तरैया बाबा आप जाए, जाने के बाद आप किसी डॉक्टर से पूछें
कि अगर बदन का कोई हिस्सा टूट जाए, अगर बदन का कोई हिस्सा टूट जाए तो उसकी क्या कैफियत होती है? या फिर बदन में कुछ आज़ा ऐसे हैं कि जहां जब चोट लगती है तो इंसान की कैफियत बदल जाती है। कुछ जगह ऐसी है कि जहां चोट लगती है तो इंसान का एक हाथ या इंसान का हाथ काम नहीं करता। कुछ जगह ऐसी है कि जहां चोट लगती है तो इंसान के मुंह से आवाज नहीं निकलती, सांस नहीं निकलती। इंसान का सर है, अगर इंसान के सर पे चोट लग जाए तो इंसान का हाथ काम नहीं करता। अगर पीठ पे चोट लग जाए तो आवाज नहीं निकलती। लेकिन अगर जिसकी पसलियां टूट गई हो, जिसकी पसलियां टूट गई हो, उसका क्या आलम होगा? आप डॉक्टर से पूछिए कि अगर किसी की पसली टूट गई हो तो उसका इलाज क्या है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? उसका इलाज वक्त है। उसका इलाज क्या है? वक्त है। हम कुछ चीजें ऐसी लगा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पसली को जोड़ दिया जाए, मगर जिसकी पसलियां टूटी हो उसकी सांस उसके लिए जो है जख्म बन जाती है। उसकी सांस उसके लिए जख्म बन जाती हो तो सोचिए कि वो बीवी जो दरो दीवार के बीच में पिस गई थी, उस बीवी का क्या हाल होगा? इमाम सैयद सज्जाद से एक शायर ने सवाल किया, कहा मौला आप ये बताएं कि आपके बाबा का सब्र बड़ा है या आपके दादा का? इमाम सैयद सज्जाद तड़प के खड़े हो गए, कहा कि मेरे दादा का सब्र बड़ा है। शायर ने कहा कि मौला आपके बाबा ने करबला में अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। कहा मौला आपके बाबा ने करबला में अली असगर के गुरु से गर्दन से बर्छी निकाली। आगा आपके बाबा ने करबला में और मोहम्मद के लाशें उठाए। आगा आपके बाबा ने कासिम का पामाल लाशा उठाया। क्या फिर भी आपके दादा का सब्र हुसैन के सब्र से बड़ा है? कहा कि तूने इंसाफ नहीं किया। कहा कि मेरे बाबा का जो सब्र था, मेरे बाबा पर जो मुसीबतें आई, उसमें दो मुसीबतें ऐसी थी कि जो मेरे बाबा की शहादत के बाद आई। जो मेरे बाबा की तमन्ना थी, मेरे बाबा चाहते थे कि किसी शहीद का सर जो है मां की आंखों के सामने न झुका दिया जाए। मेरे बाबा चाहते थे कि ज़ैनब उम्म कुलसूम की रिदा मेरी नजरों के सामने ना छिपी जाए। इसीलिए करबला में जितने भी शहीद हुए, अजीजों के लाशों को एक तरफ रखा, अकरबा के लाशों को एक तरफ रखा, चाहने वाले को लाशों को जो है एक तरफ रखा। सबके लाशों को इमाम हुसैन रख रहे हैं, मगर बाद आशूर के आसमान ने ये मंजर देखा कि शहादत हुसैन के बाद हुसैन की ये तमन्ना थी कि मेरी जिंदगी में किसी शहीद के सरों तन में जुदाई ना हो। कहा कि आसमान ने ये मंजर देखा कि हुसैन की शहादत के बाद अरे सरों तन में जुदाई कर दी गई। उम्मे लैला के सामने अली अकबर के सरों तन में जुदाई कर दी गई। उम्मे अमार के सामने अली असगर के सरों तन में दोबारा जुदाई कर दी गई। अरे फरवा के
मेरे दादा जिंदा है, अली जिंदा है, सैयदा की पसलियां चूर चूर हो गई। अली जिंदा है, शिकम में मोहसिन शहीद हो गए। अली जिंदा है, दरवाजे पे आग लगा दी गई। की आवाज़ से बुलंद हो गई, खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अली जिंदा थे, सैयदा की पसलियां टूट गई। अली जिंदा थे, दरवाजे में आग लगा दी गई। अली जिंदा थे, शिकम में मोहसिन शहीद हो गए। ये मेरे दादा का सफर था। ये मेरे दादा का सफर था। रवायत बताती है कि एक खतीब मिंबर से मसाइल पढ़ रहा था। इमाम हसन ख्वाब में आए और आने के बाद उस खतीब से कहा कि तू मेरे पूरे मसाइल नहीं पढ़ता, मेरे सारे मसाइल नहीं पढ़ता। उस खतीब ने कहा जो मकाम बोला, मैं आपके सारे मसाइल पढ़ता हूँ। आपके जिगर के 72 टुकड़े हुए, आपके जिगर के 72 टुकड़े हुए, मैं ये पढ़ता हूँ। आपके जनाजे पर तीर लगे, मैं ये भी पढ़ता हूँ। आपका जनाजा घर वापस आया, मैं ये भी पढ़ता हूँ। इमाम हसन ने कहा कि ऐ खतीब, ऐ जाकिर, तू मेरा एक मसाइल भूल गया। उस जाकिर ने कहा बोला आप ही बता दे कि वो मसाइल क्या है। इमाम हसन ने कहा कि मैं 60 बरस का था। मैं 60 बरस का था, मेरी नजरों के सामने मेरी माँ के ऊपर अब मैं 60 बरस का था कि मेरी नजरों के सामने मेरी माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिर गया। अब जलता हुआ दरवाजा जो गिरा उसकी कैफियत क्या है? तारीख बताती है कि दरवाजा तो सैयदा पर गिरा, मगर उस दरवाजे में जो कीलें थी, अरे सैयदा के जैसे ही सैयदा के सीने में कीलें चुभी, अरे सैयदा के सीने में खून जारी हो गया। अब रवायत बताती है कि सिर्फ जब दरवाजा गिरा, जनाबे सैयदा पर तकरीबन 50 लोग दरवाजे पे पैर दबा गुजरे। शिद्दत थी जनाबे सैयदा की कि जब दरवाजा गिरा है ना, तो सैयदा की पसलियां जब टूटी है तो एक हाथ पसली पर रखा, एक हाथ पसली पर रखने के बाद अरे जैसे ही सैयदा ने उठने की कोशिश की, सैयदा गिर गई। सैयदा गिरी, फिजा को आवाज दी, कहा फिजा मदद को आओ। जनाबे फिजा मदद के लिए आई, जनाबे फातिमा ज़हरा को सहारा दिया, एक हाथ पसली पर है बीबी के। जनाबे फिजा ने सहारा देकर उठाया और जैसे ही सहारा देकर उठाया, जनाबे फातिमा ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मेरी पसलियां टूट गई है। जनाबे फातिमा ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मुझ पर जलता हुआ दरवाजा गिर गया, मैं दरवाजे के अली के गले में रस्सी है, अली को खींचा जा रहा है। जनाबे सैयदा ने अपना हाथ उठाया सर की तरफ, मौलाना इमाम अली ने अपना हाथ उठाया हमामे पे रखा और कहा कि सैयदा बद्दुआ न करना, सैयदा बद्दुआ न करना। अब जब जनाबे सैयदा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा, पसलियां शुरू हो गई। अब खुदा जाने कि जनाब सैयदा किस तरीके से अल्लाह की इबादत करती है, किस तरीके से जनाब सैयदा अल्लाह की इबादत करती होगी। रवायत बताती है कि जनाब सैयदा जब इस कायनात से गई है, जनाब सैयदा जब इस कायनात से निकल कर गई, उनकी शहादत हो गई। रवायत बताती है कि 3 जनाजे ऐसे हैं कि जब इनको गुस्ल दिया गया तो गुस्ल देने वाला चीख मारता। जनाब सैयदा, सैयद सज्जाद और जनाब सकीना, जो सबसे कम सिन और सबसे छोटा जनाब सकीना का, जब जनाब सकीना को गुस्ल देने के लिए
जनाबे ज़ैनब गई है। जनाबे ज़ैनब जब जनाबे सफीना को गुस्ल देने के लिए गए हैं, रवायत बताती है कि जनाबे ज़ैनब ने एक चीख मारी और चीख मारने के बाद जनाबे ज़ैनब गश में आ गए। जब गश से इफाका हुआ, जनाबे सैयद सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा क्या बात है, आपने क्यों चीख लगाई? कहा बेटा मत पूछ। कहा बात क्या है, आपको खुदा का वास्ता बता दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अरे मैं जैसे ही सकीना को गुस्ल देने के लिए गई हूँ, अरे जब मैंने उसके बदन से लिबास को उतारा, अरे उस बच्ची की जिल्द, उस बच्ची के बदन से लिबास के साथ उस बच्ची को गोश्त दिया। जैसे ही मैंने एक चुन्नी पानी सकीना के चेहरे पे गिराया, अरे वो पानी फौरन खुश हो गया। जनाबे कुलसूम ने पानी गिराया, पानी खुश हो गया। 3 बीवियों ने पानी गिराया और पानी क्या हो गया? खुश हो गया। मेरी फसलियां टूट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।